Good morning, students. Today we are going to discuss the topic quantum mechanical model and the quantum numbers. So, before we proceed toward the quantum mechanical model, we should discuss the failures of the Bohr's atomic model. Okay. First important thing that Bohr considered only the particle nature of the matter. He did not consider the wave character of the matter, and one big mistake was that he considered the definite orbits in which the electron rotates around the nucleus, and this is just contradictory to the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है? Uncertainty principle. This principle says that it is impossible to determine the exact position and the momentum of electron simultaneously. मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लाइक स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम को सेम एग्जैक्टनेस के साथ में साइमल्टेनियसली हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते या नहीं डिटेक्ट कर सकते या नहीं डिटरमाइन कर सकते. लेकिन जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन द डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स डेफिनेटली देयर पोजीशन इज क्लियर, एंड वी आल्सो नो दैट around the nucleus at particular radius, each radius is corresponding to a particular energy, okay, or you can say particular velocity. So we can say the momentum or you can say the velocity is also fixed. So it means this Bohr's model is saying that at particular instant or you can say at any instant we can determine the position and the momentum of electron with same exactness. Okay, उसको हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जस्ट अगेंस्ट है. ओके, सो दीज वर द फेलियर्स. सो आफ्टर दिस the scientist Werner Heisenberg and the Erwin Schrödinger. Okay, शॉर्ट में हम इसको Heisenberg and Schrödinger. These were two scientists which worked upon this quantum mechanical model. Okay, and this quantum mechanical model consider the dual nature of the matter. Dual nature means this considers both nature of the matter, particle nature as well as wave nature. दोनों नेचर जो हैं या particle character and wave character both are considered by this quantum mechanical model. Okay, and for hydrogen they gave a particular reaction which is particular expression which is known as the Schrödinger wave equation, and this equation is like this: H psi equal to E psi. Okay, here the H is known as the Hamiltonian operator. What is Hamiltonian operator? And this psi is known as wave function.
Okay. Now psi can be defined, or you can say psi can be determined by the different coordinates of the electron. जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से हम इस साई वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. दैट्स वाई साई हैज नो एनी फिजिकल इम्पोर्टेंस एंड दिस इज आल्सो नोन एज द एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके. एटॉमिक ऑर्बिटल या यूं कहें स्पेस, tiny space around the nucleus. Okay. Different types of atomic orbitals may be there, and these are represented by the wave function psi, and this psi is determined by the different coordinates of the electron. Okay. But here one more thing, psi square. This psi square has a very good importance because this psi square tells us the probability of the finding electron around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों ओर किस जगह पर, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे वेदर द इलेक्ट्रॉन विल बी देयर और नॉट, और उसकी होने की कितने चांसेस हैं. ठीक है ना. दिस इज टेल बाय दिस साई स्क्वायर. ओके. और यू कैन से दिस इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. व्हाट इज द साई स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन. दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और यू कैन से probability of the finding an electron at particular place around the nucleus. Okay. अब जरा देखना है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो इन दैट केस दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी जो सॉल्यूशन है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके. और जो कैलकुलेशंस हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. तो यहाँ पर थोड़े से अप्रोक्सीमेशन के साथ में स्लाइड अप्रोक्सीमेशन लें और मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उनकी हेल्प से हम श्रोडिंगर के जो इक्वेशंस हैं इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. ठीक है ना. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो जो हाइड्रोजन एटम है और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. उनमें से जो रेडियल वे है, एक रेडियस के उसमें अराउंड में, तो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड द एटम्स हैविंग द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर डिफरेंट इन एनर्जी स्टेट्स. जो एनर्जी स्टेट्स हैं उसके रेस्पेक्ट में उनमें डिफरेंस होता है. ठीक है ना. और ये एनर्जी स्टेट्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें कि सेवरल एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. अब इन सेवरल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन सब का रिप्रेजेंटेशन जिससे हम करते हैं दे आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं? जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए. ठीक है ना. या उनकी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए जिस चीज की हम हेल्प लेते हैं दीज आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स. ओके. तो मेनली देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स. ओके. लुक हियर. These
three quantum numbers. First one is known as principal quantum number. Which quantum number? Principal quantum number. And this principal quantum number is represented by a letter that is small a. Okay. First one, it tells us the number of cells. Okay, cell number 1, 2, 3 and so on. Okay, and these cells are denoted by the letters K, L, M, N and so on. Okay, or you can say N equals to 1, 2, 3. Okay, so this principal quantum number tells us the number of cell. किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इससे, ठीक है ना। दूसरे जो n है, दिस इसकी दो वैल्यू 2n² एंड n²। दिस 2n², दिस 2n² sees us the total number of electrons present in that cell। किसी भी सेल की बात करें, जैसे हम थर्ड सेल की बात करते हैं, सपोज अगर n की वैल्यू 3 है तो 2n² will be 2 into square of 3, that is 18, means 18 electrons will be accommodated in a maximum for in orbit number 3, या यू कहें सेल नंबर 3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेशन किया जा सकता है। ओके, सिमिलरली दिस n², दिस टेल्स अस द total number of orbitals, total number of orbitals in the particular energy cell, particular shell। ठीक है, तो तीन चीज इससे मेनली पता लगती हैं, तीन कहें या चार चीज कहें। फर्स्ट वन, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, सेकंड थिंग, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, because in the expression of the energy n comes there, so n also decide the value of the energy of the electron in a particular energy level। Third thing, the total number of electrons which can be accommodated in a particular cell, and the total number of orbitals which can be accommodated in a total number of orbitals which can be accommodated in a particular energy cell। Okay, now the second quantum number is azimuthal quantum number। Which quantum number? Azimuthal quantum number। Azimuthal quantum number। Okay, or this is also known as orbital quantum number। Orbital angular quantum number। Okay, and this is also known as subsidiary quantum number। Okay, this orbital angular momentum quantum number is represented by the small letter L। Okay, is orbital angular quantum number, angular momentum quantum number, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो स्मॉल लेटर L से, ठीक है ना। और इस L की वैल्यू जो होती है दैट इज 0 to n-1। ठीक है, अब जरा देखें, जैसे n की वैल्यू 4 है, इफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, this 3 is 1 less than the 4 which is the value of the principal quantum number। ठीक है ना,
तो ये कह सकते हैं कि L की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो n के बराबर है। टोटल वैल्यूज ऑफ L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होंगे, जितनी n की वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक जी इधर एक कम है तो इधर 0 इंक्लूड है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्या? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, and this magnetic orbital quantum number is designated by ml. Okay, and this magnetic orbital quantum number tells us the spatial arrangement of the orbitals. Okay, यहाँ पे देखी जाए, जैसे हम n की बात करते हैं, ठीक है ना, n एनर्जी लेवल की बात बताता है, किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। L की बात करें तो L क्या बताता है, सब सेल्स, ठीक है ना, ठीक है, ये सेल, देन सेल के अंदर कई सारी सब सेल्स हो सकती हैं, एक सब सेल हो सकती है या एक से ज्यादा सब सेल हो सकती है, ठीक है ना। सब सेल कौन कौन सी होती है, S, P, D, F, G, so on, ठीक है ना, ये सब सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। L की वैल्यू जो है किस सब सेल के लिए, इस सब सेल के लिए, S के लिए क्या होगी 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 एंड G के लिए 4। ओके, अब जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इससे हमें पता लगता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। कोई ऑर्बिटल जैसे सब सेल जो है, सब सेल के अंदर सब सेल, ठीक है ना, या जिन्हें हम ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं, सब सेल, देन सब सेल, और सब सेल के अंदर सब सेल या ऑर्बिटल्स। ओके, एस जो सब सेल है, इसके अंदर एक ही सब सेल है, एक ही सब सेल, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, जिसे एस ऑर्बिटल ही बोलते हैं, ठीक है ना। जो पी सब सेल है, पी सब सेल के अंदर 3 सब सेल हैं, ठीक है ना। ओके, या यूं कह सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के अंदर 5 है, एफ के अंदर 7 है, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्बिटल्स क्या है, दीज ऑर्बिटल्स टेल्स अस द स्पेशियल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, या यूं कह सकते हैं स्पेस में किस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्बिटल ओरिएंट है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन, वेदर इट इज ओरिएंटेड इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, इट इज ओरिएंटेड, मीन्स किस तरीके से इसकी जो लोब्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये हमको किससे पता लगता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से, ठीक है ना। और ये कनेक्टेड है किससे, सबसे, एल से कनेक्टेड है, ठीक है ना। एल से किस तरीके से, जो एम एल की जो वैल्यू है, दैट स्टार्ट फ्रॉम -L to 0 देन +L, ठीक है। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज 2l+1, -L to 0, ठीक है ना, L एंड 0 to L, ये L plus L एंड 1 0, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml इज 2l+1। या यूं कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सब सेल में 2l+1 डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन हैं, जिसमें कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो उन डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, ठीक है ना। या हम जैसे बात करते हैं, देखिए
कि किस सब सेल में कितने कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, थोड़ा सा हम वो देखते हैं। यहाँ हम थोड़ा एस की बात करें। एस के लिए जो एल की वैल्यू है 0 है, ठीक है ना। और इसके लिए एम एल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जैसे स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, स्पेस में ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन, वो किस तरीके से -L to +L, तो -0 to +0, ओके, मीन्स ओनली 0। तो जो ml की वैल्यू है किसके लिए, एस सब सेल के लिए सिर्फ 1 है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो एस ऑर्बिटल है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज स्फेरिकल, ठीक है ना। इट इज ओरिएंटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली एंड ओनली वन सब सेल इज प्रेजेंट इन एस सब सेल, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं एक सब सेल, एस सब सेल में एक ही एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब पी की बात करते हैं। पी जो है ये डम्बेल की शेप में होता है इस तरीके से। इज इट क्लियर? पी जो है डम्बेल की शेप में है। तो इस तरीके से ये डम्बल 3 तरीके से ओरिएंट हो सकता है। इफ दीज lobes are oriented in x direction, then this will be called px, and if this one, यहाँ पे अगर हम इसको z, क्योंकि पर्टिकुलरली जो z है उसको हॉरिजॉन्टली सपोज किया हुआ, z एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस सपोज किया हुआ, so this will be pz, and if this is oriented like this, suppose this is px and this one ऐसे कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये pz है, ठीक है, ये px हो गया और ये this one py, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर 3 स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ p ऑर्बिटल्स, ओके। तो p सब सेल में 3 क्या है, सब सेल हैं जिनका ओरिएंटेशन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में है। और कैसे हम इस वैल्यू से भी पता कर सकते हैं, -L to +L। p के लिए l की वैल्यू है 1, तो ml की वैल्यू अगर हम लें तो -L to +L, ओके। तो -1 0 1, ओके। तो there will be total 3 subcells, okay, 3 subcells are present in the p subcell, okay। तो इस तरीके से जो है 3 स्पेशियल अरेंजमेंट है p ऑर्बिटल्स में। इसके बाद में हम d की बात करें तो जो d सबसेल है, जो d सबसेल, उसके लिए L की वैल्यू हम चेक करते हैं, ओके। L की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। जब L की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर Mn, इसकी वैल्यू -L to +L, इसका मतलब -2 -1 0 1 and 2, okay। So there will be 5 subcell are present in D subcell, okay। जो D subcell है उसमें 5 subcell are present, okay। तो इसमें टोटल नंबर जो स्पेशियल अरेंजमेंट हो गए 5 हो गए, ठीक है ना। और जो D सबसेल है उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर डबल डम्बेल से, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मैं ये x डायरेक्शन है या z डायरेक्शन ले लेते हैं और ये सपोज x डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से डबल डम्बेल से, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड,
जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 5 ऑर्बिटल dxy, dyz, ओके, dzx and dx square y square and dz square. तो these are 5 orbitals which are present in d subcell. ओके, तो d सबसेल में जैसे dxy है, dxy में जो, क्योंकि ये डबल डम्बेल की शेप होती है इसमें, और xy इसका मतलब इसकी लोब्स जो है x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में लाई करती है। जैसे हम इस तरीके से बनाएंगे, ये माना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमें dxy बनाना है, तो dxy की शेप कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। मीन्स देयर लोब्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज dxy, ठीक है। और dyz कहेंगे तो y और z के बीच में, dzx तो x और z एक्सिस के बीच में इनकी लोब्स ओरिएंट होंगी। dx स्क्वायर y स्क्वायर इस ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल है जिसकी लोब्स जो हैं वो x और y डायरेक्शन में है, ठीक है ना। किस तरीके से है जरा देखें, d ये x ये y, ओके। सो ये dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें जो इनकी लोब्स हैं दे आर ओरिएंटेड इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, ओके। एंड इन केस ऑफ dz स्क्वायर इसमें one lobe is in z direction, okay, and second lobe becomes in the form of ring, okay। तो इस तरीके से ये 5d ऑर्बिटल्स हैं जो कि d सबसेल में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं -L2 + L, -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। इसी तरीके से जो F सबसेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट हैं वो 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वांटम नंबर्स है जिसकी वजह से हमें स्पेशियल ऑर्बिटल्स का स्पेशियल अरेंजमेंट पता लगता है। इसके बाद में क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन स्टैटिक, ओके। so this is always in moving condition, so there are 2 directions in which it can rotate around the axis या around its own axis, okay। या तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है ना। मतलब एक तो हुआ क्लॉकवाइज, ओके, एंड सेकंड वन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इस तरीके से हमें एक फोर्थ क्वांटम नंबर और कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ओके। स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, okay, and this is represented by ms, okay, and it has only 2 values, +12 and -12. This +12 shows the direction of the rotation in clockwise and this -12 shows the direction of rotation of electron in anti-clockwise direction. So in this way
So this is the whole quantum mechanical model and the quantum numbers. Thank you.